سر سائیکلون جو 99 میں آیا تھا اس میں یہاں پر 6500 بندے مر گئے تھے اسی ایریا میں. وہ کیونکہ سمندر میں آتا رہتا ہے ہر سال, تو یہاں کے ہمارے جو ایریگیشن نیٹ ورک تو ڈیمیج ہوا ہے برسات کی وجہ سے, اور دوسرا اس سمندر کی جو اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے اس کی وجہ سے کوئی 25 کلومیٹر ڈرینیج سسٹم پورا تباہ ہوتا ہے, پانی واپس جاتا ہے اور آتا ہے, اور اسی طریقے سے ایل بی ڈی پہ تو یہ ہے. اور پھر دریا میں بھی فلڈ ابھی تربیلا سے شروع ہو گیا ہے, جو ہے لارج اسکیل فلڈ آ رہا ہے, اس کی بھی تیاری کر رہے ہیں. وہ بھی اسی ایریا میں ساتھ ہی ڈیلٹا یہاں کے ختم ہوتا ہے دریا جو ہے, تو یہ ہے. اور پھر میرے ساتھ یہ دوست ہے ظریف کھڑوچی اس پہ ایل بی او ڈی میرے پاس ہے سر. سر یہ ہمارا ڈرینیج نیٹ ورک ہے ایل بی او ڈی کا, جو ڈسٹرکٹ نواب شاہ سے ایون ڈسٹرکٹ نوشرف سے شروع ہو کے یہ اس کی مین کیریئر چینل ٹرنک ہے جو اسپائنل, یہ وابڈا آ کے ہم سمندر میں لے آتی ہے. یہ 84 سے یہ پانی ادھر ہی سے ہوگا, اور 84 سے لے کے 97 تک وابڈا نے بنایا. اور ہم یہاں پر کہاں کھڑے ہیں سر؟ ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں ان کے ٹورڈس دس سائڈ سر. ہم ابھی اس طرف کھڑے ہوئے ہیں سر. یہ جو یہ ایگزیکٹلی دس پوائنٹ پہ ان جگہوں پہ ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ ہمارا سسٹم جو ہے یہ ہمارا کوٹلی براج جب بنا تھا 1960 میں اس کے ساتھ بنا تھا. یہ 1984 سے لے کے 97 تک وابڈا نے بنایا. تو 99 میں پہلا جو سائیکلون آیا ان کا پورا سسٹم ڈیمیج ہو گیا, اور انہیں پہلے تو اس سے پہلے 93 میں انہوں نے اسپائنل ہمیں سندھ کو دینے کی, پھر ہم نے واپس کر دی. پھر انہوں نے 2002 میں دے دیا جو ڈیمیجڈ. وہ فائنلی ان کا انسپیکشن پینل آیا تھا ورلڈ بینک کا, اس نے کہا کہ یہ سسٹم ابھی ڈیمیجڈ ہے, اس کو پھر بنانا پڑے گا. ہم یہ اسکیم اس کی بھیج چکے ہیں, کیونکہ ہم نے کہا جب تک بڑی اسکیم ہے 135 بلینز کی ہے, اس میں گورنمنٹ آف سندھ نے یہ البتہ اپنے ریسورسز میں سے کیا ہے. ایل بی او ڈی اسپائنل کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی اس کے جو نیچرل روٹس تھے, جو ڈھورو پران اور یہ سارے تھے, ان کو اس نے کراس کر کے کسی جگہ پہ انہوں نے ڈھورو پران میں سے بھی اس کو فلو کروا دیا ہے. اس کی لیول اوپر ہے, یہ لیول نیچے, جبکہ یہاں پہ بھی کوئی گیٹ دیتا تو کوئی ان کو ریلیف مل جاتا. اب ہم کرٹیکل سچویشن میں 14.5 فٹ کی جگہ پہ اب 19.2 مینس آلموسٹ اباؤٹ 19.5 فٹ پانی ہے. کسی ٹائم میں نے ویسے لیٹر ایشو کر دیے کہ کہاں سے بریچ ہو سکتے ہیں. تو ہر سال ڈیواسٹیشن ہوتی ہے. 2020 میں بلینز آف روپیز کا ہوا. اس مرتبہ ہماری اسکیم گئی ہوئی ہے, کچھ سی ایم صاحب نے الحمدللہ اس میں اباؤٹ 10 بلین کا جو امپورٹنٹ یہ انڈر پاسز ہیں اس بنانے کے لیے ہمیں دیے ہیں. لیکن ان کے بندس ہیں, اور اوپر جو ان لینڈ سسٹم ہے وہ بھی سارا, کیونکہ انہوں نے بنایا تھا 155 ملی میٹر 5 دن میں. اب یہ ہمارے ودن 24 آورز بھی مور دین 200 ملی میٹرز برسات ہو جاتی ہے, تو ہمارا پورا سسٹم اوور ٹاپ ہو جاتا ہے. لیکن الحمدللہ جو 2 سالوں سے 2020 کے بعد جو گورنمنٹ آف سندھ نے پیسے دیے تو پورے سسٹم کو ہم نے دے, ابھی کہیں پہ بھی بریچ نہیں ہے. لیکن جہاں پہ جیسے ڈھورو پران ہے, آپ کو جھڈو اور مرپور سائڈ پہ, تو حالیہ بارشوں سے کہاں سر یہ بتا دو ظریف آپ کہ ابھی جو آپ کے نیچے ہے نا اس وقت کہاں پہ پانی ہے سر؟ اب یہ ہمارے پوری ہم نے سندھ کی اسیسمنٹ کر کے جو موجودہ سینٹینل کے امیجز ہیں اس میں اننڈیشن, تو ہماری یہ ڈسٹرکٹس جو ہیں پورے 23 ڈسٹرکٹس, ان کا مور دین 5-6 لاکھ ایکڑ جو لینڈ ہے نا یہ ساری ڈوبی ہے. یہ بلو یہ بھی فصل تباہ ہے. اس کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب ادھر سے گزرے تھے یہ, اور یہ دیکھیں کیا پوزیشن ہے. ہاں سر, یہ بھی سر ابھی 23 تاریخ کو 4th اسپیل وہ آیا ہے وہ, لیکن امیج جو اپڈیٹ ہوگا وہ آج رات یا کل تک ہو جائے گا. تو یہ پورا بھرا ہوا ہے ابھی سب سلسلہ سر اس میں. تو یہ اس میں ہمارے یہ جب تک شولڈر نہیں ہوگا. اچھا دوسری یہ ہے سر کہ ہمارا یہ 2015 والا فلڈ 10 کا بھی اس میں فلڈ وہ میرے ہاتھ میں ہے, کیونکہ یہاں پہ تو یہ ایکچولی سندھ ہمیشہ پورا سندھ جو ہے نا دریائے سندھ کے راستے رہے. یہ انڈس کے اولڈ روٹس ہیں سنس سینچریز. اس میں یہ ہمارا انڈس ڈیلٹا یہاں پہ یہ اسٹیبلش ڈیلٹا ہے جہاں پہ آپ ابھی کھڑے ہیں سر. اچھا اب جو انڈس اس میں جا رہے ہیں صرف 2 کریکس میں جا رہے ہیں, یہ 17 کریکس ہیں. تو ہمیں ادھر پانی لے آنے کے لیے ہم نے یہ ایک لیونگ انڈس کا پروجیکٹ جو کانسیپٹ سی ایم صاحب نے دیا ہے کہ ان کریکس کو بھی ہم ریہیبلیٹیٹ کریں, اس میں پانی چھوڑیں, کیونکہ یہ ہمارا ویسٹرن نارا جس میں ہماری آر بی او ڈی فلو کروا دی گئی ہے. آر بی او ڈی بھی 2 ہمارے جو پروجیکٹس آر بی او ڈی 3 اور 1 وہ ہماری ڈرین نہیں تھی, وہ ہمارا نیچرل سویٹ واٹر کا سورس تھا ویسٹرن نارا. سندھ انڈس 2 سورسز میں بات ہے, کورسز میں, ایک مین میانڈر پلین میں, 2 کور فلڈ پلین, ایک یہ دادو شدا منچر میں جہاں پہ سی ایم صاحب کا گاؤں ہے, اور ایک یہ اب یہ ایک ڈمپنگ گراؤنڈ بن گیا ہے پورے اوپر سے بلوچستان, اور یہ مور دین
6000 ppm جو DDS کا پانی ہے جس میں کوئی بھی انسان اور اس میں نہیں کرا. یہ اب مشکل یہ ہوگی کہ اس کا پانی ہم کہاں اس میں لاتے ہیں تو پھر یہ ہمارا حیدرآباد کو نہیں کر سکتے. اوکے سر, تھینک یو. ڈسٹرکٹ سجاول کی With your permission. Sir, we'll be presenting the brief and our sequence of presentation would revolve around the profile of the district, the damages, sir, and the relief items that we have received and what we have worked so far. Next, please. Sir, the area is around 7,355 square kilometers, while the population is 8,17,000 around. We have 5 talkas. Sajawal, sir. We have 1 district council, 5 town committees, 37 union councils and 15 police stations, sir. So this chart gives us an overall picture of the losses. The houses damaged that are fully damaged are 2,604, while 11,517 are partially damaged, sir. These are muddy houses and the number would go further high, sir, because the assessment is under. कितने डैमेज हुए? Sir, 2,604, sir. And sir, ऊपर जाएगा इसलिए कि ये अभी जैसे ड्राई होगी ना बहुत ज़्यादा बढ़ेगी इससे. तो हम असेसमेंट करेंगे इसकी. अगर हम विलेज में देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर डैमेज, सर. And the death toll, if we see, sir, there was an unfortunate incident 2-3 days back where a lightning incident took place and a male person and a child died because of that. 3 got injured, sir. They are as of now safe. Number of population displaced is more than 96,000, sir. As on today, we have 4 relief camps, sir. आपके कैंप्स में रखा हुआ है? सर सिचुएशन ये है कि जो लोग रिलीफ कैंप्स में हैं वो अराउंड 100 फैमिलीज़ 120 फैमिलीज़ हैं. बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर यहाँ पर जो ड्राई प्लेसेस पर अपने टेंट लगा के रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. उनको भी हम डिस्प्लेस कंसीडर करते हैं. उनके लिए भी हम मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं, लाइव स्टॉक कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा जगहों पर हम पहुँच के फूड प्रोवाइड कर सकें वो भी करें. उनको पका हुआ देते हैं? सर पूरी कोशिश जारी है. इसमें हमारे साथ NGOs भी ताउन कर रही हैं, इसमें हमारे साथ पाक नेवी भी ताउन कर रही है, इसमें हमारे साथ लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी बहुत ज़्यादा ताउन कर रहे हैं सर, और इसमें हमारे साथ आर्मी भी बहुत ज़्यादा ताउन कर रही है. मैं ये नहीं फूड मैंने इनसे पहले स्टेज में कहा था कि हर बंदे को पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है. मैंने सिर्फ 10 दिन पहले किया था. अभी नेक्स्ट स्टेज में और जो जल्दी शुरू करेंगे हम राशंस वो मैंने सारा कर दिया है कि हम चाहते हैं कि एक लार्ज क्वांटिटी में हम अपना पहले स्टोर बना लें ताकि इनको अगर हम 200-500 बैग भेजेंगे तो कुछ नहीं होगा. इनको कम से कम भी तो 30,000 बैग मेरे अंदाजे से चाहिए. जी कि 3-4 चीज़ें हैं जो ज़रूरी है. सबसे पहले से बंद की जो बात कर रहे हैं, ये समुद्र को बंद देना, ये पहले मियाँ साहब आए थे बड़े, तो उन्होंने यहाँ पे ऐलान भी किया था. फिर वो PSDP जो आपकी होती है उनमें भी उन्होंने रखा था. 50 करोड़ रिलीज़ भी किए थे वापडा वालों को वो फिजिबिलिटी के लिए, वो भी हो गई. और उसके बाद काम शुरू होना था कि वो इमरान खान साहब आ गए तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया. तो एक तो वो से पहले लगी हुई है 17 की 2017-18 की बजट में. एक तो आप ये हमारे ऊपर मेहरबानी करें, आज ये अनाउंस कर दें. दूसरा सर हेल्थ कार्ड हमारा वो भी मियाँ साहब ने किया था, लेकिन ये इमरान खान के आने के बाद वो 3 डिस्ट्रिक्ट थे, ठट्टा, सजावल और टंडू मोहम्मद खान, तीनों का कैंसिल हो गया. वो भी हमें करके दें. और तीसरी से अर्जी है कि हमारे पास जो पहले मियाँ साहब आए थे, कम से कम ये जो बैग्स देंगे ना, इससे बेहतर चीज़ ये है कि गंदम की 1 लाख बोरी हमें ठट्टा में दें, एक सजाल में 1 लाख दें. तो सर वो गंदम पहले भी गंदम मिली थी मियाँ साहब के ज़माने में, तो हर आदमी को 1-1 बोरी मिल गई ख़ानदान को. इस तरह सारे लोगों को भी आराम सुकून मिल जाएगा और हमारे ऊपर जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा. ज़राई बैंक से अर्ज़ करूँ से ज़राई बैंक के जो कर्ज़े हैं, पहले भी अर्ज़ किया था कि सर उसके लिए मेहरबानी का तो सारी सिंध ख़त्म हो गई है. तो सिंध के जो 5 लाख रुपए तक अगर कर्ज़े लोगों के ऊपर ये माफ़ हो जाएं सारी सिंध में, अगर सिंध में हो जाए तो सबसे बेहतर. नहीं तो फिर हमें तो सजावल से, क्योंकि हम तो आखिर में टेल में हैं. अच्छा, डूबते भी हम हैं, अब पानी भी नहीं है तो सूखते भी हम हैं. और हमारे पास तीसरा ये समुद्र का, और इस साल जो बारिशें पड़ी है CM साहब ने आपको बताया होगा 400% से ज़्यादा पड़ी हैं इस साल. तो ये हमें ऐसी 5-6 काम है, ये इसमें कोई अनाउंस कर दे यहाँ पे तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी. डिप्टी कमिश्नर साहब, आपने कहा कि 1700 मिलीमीटर बारिश हुई है, ये कितना अनयूजुअल, आपकी एवरेज रेनफॉल कितनी होती है? सर मैं दरअसल ये बताना चाहूँगा, ये जो 1699 है, इट इज़ अ क्यूमुलेटिव फिगर ऑफ ऑल द तालका सर. सर वैसे अगर हम एवरेज करेंगे तो इट इज़ अराउंड 400 to 450 mm जो कि एवरेज हुआ है सर. ये चारों तालकों को ऐड ऑन करके उन्होंने टोटल क्रॉप एरिया सर
sir. एवरेज कितनी आती है साल में? I mean, how unusual is this? हम तो ये So जानते it is very unusual. बहुत ज़्यादा भी 50 60 50 60 से ज़्यादा नहीं होती, कभी नहीं हुई है, ये पहली मरतबा हुई है। एग्जैक्टली पूरे सिंध का, और ये दिस इज नॉट अ वेरी वेट। और सर इसके स्पेल्स भी ज़्यादा हो गए, इतने ज़्यादा स्पेल्स भी नहीं होते, तो वो बहुत अनयूजुअल है सर इसमें। सर टोटल जो क्रॉप एरिया हमारे पास 98,101, जिसमें से जो एरिया अफेक्ट हुआ है दैट इज़ 86,670, ऑलमोस्ट ये 90% को टच। सर मैं एक अर्ज करूँ सर, जैसे हमारे MP है मोहम्मद अली मलकानी। पहले तो मैं आपका और चीफ मिनिस्टर साहब का, अपना खुर्रम दस्तगीर साहब को वेलकम करता हूं कि आपने इस मुश्किल घड़ी में सिंध के लोगों को याद किया। और चीफ मिनिस्टर साहब, नहीं, चीफ मिनिस्टर साहब का ये तीसरा टूर है। सीएम साहब तो हमेशा हमें, खुदा न करे कोई मुश्किल होती है तो हमेशा याद करते लेते हैं, लेकिन आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप यहाँ आए हैं और सिंध के लोगों को आपने मुश्किल घड़ी में याद किया है। यहाँ हम सब की जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी डिमांड है वो ये है कि ये जो समंदर का इलाका है ये हमें हर साल तबाह करता है, तो इसकी जो प्रोटेक्टिव बंद है, जैसे शिराजी साहब ने कहा था 17-18 की PSDP में थी, लेकिन वो फिर जैसे गवर्नमेंट चेंज हो गई तो वो निकल गई। तो पहला हमारा मुतालबा सबका, यहाँ पे जितने MPs MNAs हैं वो उनका ये है कि ये मेहरबानी करके इसके लिए आप कोई हमें मेहरबानी करें ताकि वो हो जाए। और ZTBL के जो कर्जे की बात की है शिराजी साहब ने, उसको हम सब एक पॉलिसी होगी पूरे मुल्क में, इंशाल्लाह बैठ के देखेंगे इंशाल्लाह। आपने बात करनी थी सर, ये मैं लाल बख्श जतोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ PMLN का। यहाँ पर मियाँ साहब आए थे, हेल्थ कार्ड का अनाउंस किया, बंद का किया, हॉस्पिटल का किया। मैं सारा वो जो मियाँ साहब का ऐलान आते मैं लिख के ले आया हूँ, आपके हवाले करते हैं। और यहाँ पे ये है कि बहुत सारा ये सारा इलाका इफेक्टेड है सर। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए ज़रूरी कर्ज़ियात माफ़ किए जाएँ। उसके अलावा जो मियाँ साहब के अनाउंस किए हुए प्रोग्राम में सारों पे आज आप अनाउंस करें हमारी पार्टी के लिए, और पार्टी का ही काम है। दूसरा सर, मेरी थोड़ी शिकायत है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से सर, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से है सर, वो हमें मुस्लिम लीग वालों को वो अछूत समझते हैं। कच्चे सारे कच्चे हैं सर। कल हमने हुकूमत की तरफ से, प्रेसिडेंट जरदारी साहब की तरफ से ऐलान कराया है कि हम सबके साथ काम करेंगे, हम सबको रिलीफ देंगे। असां इंतजामिया खे चयो आहे न, थी इंशाल्लाह थींदो, सभिनी सां गॾु मिली इन ॾुखे वक़्त में असां सभिनी खे गॾु मिली कमु करिणो आहे। जी शुक्रिया जी। अपने हम यहाँ पर सजावल में आए हैं और यकीनन जो हालिया बारिशें जो हुई हैं सिंध में और इन इलाकों में, जनूबी सिंध में, उसमें बहुत तबाही मची है और बहुत ही ज़्यादा नुकसानात हुए। मैं कल भी मैं इधर ही था और आज आपके पास सजावल में हाज़िर हुआ हूँ। तो यहाँ पर भी हमने हेलीकॉप्टर में देखा कि बहुत चारों तरफ पानी फैला हुआ है और यकीनन इसने बहुत नुकसानात पहुँचाए। कल उधर शुमाल की तरफ बेपना सवात में, कालाम में, दीर में बेपना बहुत ही शदीद बारिशें हुई और उसके रेला बना, जिससे कि वहाँ पर कई जानें अल्लाह को प्यारी हो गई। बहुत शदीद जानी और माली नुकसान वहाँ पर हुआ। वहाँ पर सड़कों का, होटल जो थे वो जो किनारे से दरिया के, वो बिल्कुल पानी में बह गए और पुल सब उड़ गए। तो अब वो एक रेला आगे आ रहा है। अल्लाह ताला करे कि चारसदा और नौशहरा वहाँ पर एक सैलाबी थरट बन रहा है। खुदा ताला करम करेगा इंशाल्लाह। लेकिन नौशहरा और चारसदा इस वक्त यकीनन एक वहाँ पर एक शदीद एक थ्रेट की सूरत है। अल्लाह ताला अपना फजल करेगा। लेकिन कल से वहाँ पर इंतज़ामिया, वहाँ पर रेस्क्यू जो एजेंसीज़ हैं, फ़ौज पाकिस्तान, वो सब मिलकर दिन रात काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर उनको इस्तेमाल किया जा रहा है और बेशुमार लोगों को अपना महफूज जगहों पर पहुँचाया गया है और रिलीफ वर्क भरपूर बड़ी तेज़ी से जारी है। फिर जो मुंडा डैम जो है वहाँ पर सैलाबी रेले ने बड़ा स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया और वहाँ पर स्ट्रक्चर जो है उसको बहा के ले गया काफ़ी। तो ये नुकसानात बदकिस्मती है कि अल्लाह ताला रहम करे, करम करे। पूरे पाकिस्तान में, सिंध में, बलूचिस्तान में, KB में, पंजाब में, शुमाली इलाकों में ये इस वक्त हो रहे हैं। अल्लाह ताला से हमें रहम मांगना चाहिए और अपनी गुनाहों और गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन हिम्मत हमें करनी होगी और दिन रात मेहनत करनी होगी। इंशाअल्लाह मिलकर हम इस सूरत हाल पर काबू पा लेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर मैं भी आया हूँ कैंपों में, मैंने देखा
जो लोग बारिशों से मुतासर हुए हैं कैंपों में मौजूद हैं और जिस तरह बताया गया यहाँ पर खाने की और बाकी सहूलतें पहुँचाई जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं जनाब चीफ मिनिस्टर साहब को और इंतज़ामिया को मैं तहसीन पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह हम मिलकर जो मुतालबात आपने यहाँ पर पेश किए हैं, इंशाअल्लाह वो ज़रूरी बैंक्स के हवाले से या दूसरे मामलात हैं, वो इंशाअल्लाह उसके ऊपर हम एक इज्तिमाई पॉलिसी बनाएंगे मिलकर सूबों के साथ और इनको इंशाअल्लाह हल करेंगे। बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल जी। सर हमने एमएनए साहब कुछ जी अर्ज करना सर गुजारिश है, बाकी तो डिमांड जो भी थी, एक तो आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग आए, सीएम साहब भी 2-3 दफ़ा आए, आप आए हमारे पास, खुरम दस्तगीर साहब आपका शुक्रिया। बाकी सर गुजारिश तो रखी आप लोगों के सामने जो भी डिमांड थी। एक गुजारिश और भी है, हमारे वापडा के जो है ना सर पोल गिर गए हमारे वापडा के, हमारे कई गांव बंद है, ट्रांसफार्मर हमारे तकरीबन 2 महीने से यहाँ पे बारिश चल रही है, ट्रांसफार्मर कोई 20-25-30 जो है ना वो जल गए, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा हेस्को की तरफ से। इसीलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे इधर डेजिग्नेट कर दिया कि मैं सिंध में ही हूँ। यहाँ तक कि सर मेरे गांव का, हमारे गांव का ट्रांसफार्मर जल गया, पर्सनली मैं गया, उसके बाद भी नहीं मिला, 10 दिन के बाद सर मैं मुझे हैदराबाद में हूँ जी मुस्तकिल, और इसको रिजॉल्व करके हर जगह जाएंगे और आपको शिकायत नहीं होगी। मुझे कल आपने मुझे बताना कि आपके ट्रांसफार्मर लगे कि नहीं लगे, ठीक है मिनिस्टर साहब इंशाअल्लाह। खुरम दस्तगीर साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के हुए सर इस कोस्टल नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे सजावल में और वहाँ उनको ब्रीफिंग दी जा रही थी, बताया जा रहा था कि कितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और ये भी